Good morning, everyone. Welcome back to the World of E-Learning classes. So, as you all know that your test 2 have finished and we will proceed further towards test 3 syllabus. And today we will start with English literature. In English literature, in your test 3 syllabus, chapter 7, 8, 9 and 10. 4 chapters are there. Chapter 7, 8, 9 and 10. So today we are going to start chapter 7 and the name of the chapter is Subhash Chandra Bose. See, you all are aware with Subhash Chandra Bose. He was a freedom fighter and he was also called as Netaji. Let us read something more about him. There were many great heroes who lived at the time of the Indian freedom movement. They had only one goal, independence for India. Subhash Chandra Bose was one such hero. People used to call him Netaji, meaning revered leader. See, as we all know that there were many great heroes who lived at the time of Indian freedom and they fought well to make India free for the independence of our India. So Subhash Chandra Bose was one of them and people used to call him Netaji. The meaning of Netaji, why they used to call Netaji? Because the meaning of Netaji is revered leader. Revered means respected, reputed, respected leader. He actively joined politics and formed a party called the Indian National Army in Japan. It was Subhash Chandra Bose who first called Mahatma Gandhi as the father of the nation. Bose believed that our attitude should be one of the determination if we want to achieve our goals. He was clear about his goal, freedom for his country. Subhash Chandra Bose also joined politics and formed a party. उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया था. The name of that party was Indian National Army and this party was formed in Japan. Subhash Chandra Bose was only the person who first gave Mahatma Gandhi the name as father of the nation. महात्मा गांधी को father of nation का टैग, ये टाइटल फ्रेज सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था. बोस को एंड बोस ऑल्सो बिलीव दैट इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग, अगर हमें अपनी लाइफ में कोई गोल है, हमें उसे अचीव करना है तो हमारा उसकी तरफ पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए. हम बिल्कुल ही उसकी तरफ पूरी 100% डिटरमाइंड होंगे. देन ओनली वी कैन अचीव एंड आर एटीट्यूड, जो द वे वी आर प्रेजेंटिंग द थिंग्स, इट शुड बी शोन विद अवर एटीट्यूड. एंड ही वॉज वेरी क्लियर विद हिज गोल. उनका गोल सिर्फ एक ही था एंड दैट वॉज फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री दैट इज़ इंडिया की फ्रीडम. Once a big rally was organized in Singapore by the supporters of Bose to welcome him. Many garlands were put around his neck. Bose humbly thanked everyone and then announced that he would like to auction the garlands that had been put around his neck and use the money to build the Indian National Army. वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था, सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस जी के सपोर्टर्स थे उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज़ करी. एक रोड शो होता है, रैली होती है, रैली निकलती है, रैली ऑर्गेनाइज़ करी. उस रैली में उन्हें बहुत सी फूल मालाएँ, गार्लैंड्स मीन्स वो जो फूलों की मालाएं होती हैं, वो ढेर सारी फूल मालाएं पहनाई गई उनकी नेक में. बोस ने उन सबको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया उन मालाओं को और सबका थैंक यू किया. थैंक यू करने के बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि मेरे गले में जितने भी ये गार्लैंड्स हैं, जितनी भी ये मालाएं हैं, इन सब का ऑक्शन होने वाला है. ऑक्शन मीन्स पब्लिकली इनको बेचा जाने वाला है और उसको जब बेचा जाएगा तो उसके रिटर्न में पीपल हैव टू गिव मनी और उस मनी का, उस पैसे को वो यूज़ किस में करेंगे, टू बिल्ड इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी को बिल्ड करने में, खड़ा करने में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसे उन्होंने कहाँ से डेवलप किए, विद बाई सेलिंग, बाई ऑक्शनिंग दोज गार्लैंड्स जो उनको प्रेजेंट किए गए थे. Many people start bidding for the garlands and a huge amount of money was soon collected. बहुत लोगों ने बिड करना शुरू किया. बिड मीन्स बोली लगाना. बोली लगाई गई और बहुत ही जल्दी एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट हो गया था. The women present offered their valuable and gold ornaments.
In the crowd, a young man from Banaras was also present. वहाँ पे जो विमेंस थी, विमेन ने अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरीज उनको एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ गिफ्ट प्रेजेंट की. एंड वहाँ पे देयर वॉज अ बॉय फ्रॉम बनारस, एक बॉय था वहाँ पे, अ यंग मैन फ्रॉम बनारस. बोस वॉज हिज आइडल, वो बोस को अपना आइडल, अपना गुरु मानता था. एंड ही वॉन्टेड टू बिड फॉर अ गारलैंड, बट द मनी बीइंग ऑफर्ड वॉज मच मोर देन वॉट ही हैड. हाउएवर ही गैदर्ड courage and walked up to Bose and said, I want to be a part of the freedom struggle. I do not have a lot of money, but it will be proud moment for me if you give me one of your garlands. There was a man from Banaras, और वो बोस को अपना बहुत बड़ा आइडल मानता था. सो वो भी चाहता था, जैसे सब लोग गार्लैंड्स पे बिड कर रहे थे, ले रहे थे, गार्लैंड्स खरीद रहे थे, उसी तरह वो भी चाहता था एक गार्लैंड लेना. बट ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी, उसके पास उतने पैसे नहीं थे. लेकिन उसके पास क्या थी? हिम्मत थी. ही वॉज वेरी करेजियस मैन. वो गया बोस जी के पास और उसने वहाँ जाके कहा कि मैं स्ट्रगल में, इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग जो होगी उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं. मेरे पास क्या है? मेरे पास हिम्मत है. मैं उस हिम्मत से आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे बहुत प्राउड मोमेंट फील होगा अगर आप अपना एक गारलैंड मुझे देंगे. Bose was moved by the young man's patriotism and gave a garland to him with great love. Bose उसकी हिम्मत को देख के बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत सराहा उसको और उन्होंने खुशी खुशी एक गारलैंड उसे प्यार से दिया. सुभाष चंद्र बोस collected donations from Indians throughout Asia. सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियंस, जो एशिया में, पूरे एशिया में इंडियंस थे, उनसे बहुत अच्छा डोनेशन कलेक्ट किया. वंस अ स्मॉल फ्लावर वास वॉज प्रेजेंटेड टू हिम. ही अनाउंस्ड दैट ही वांटेड टू सेल इट ऑफ फॉर 25,000. Such was the love of the people for him that the first offer was for 51,000. एक बारी उनको एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता, एक स्मॉल वास प्रेजेंट किया गया था, गिफ्ट किया गया था. फिर उन्होंने, वो एशिया में थे तब, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि मैं इस फ्लावर वास को सेल करना चाहता हूँ, और कितने में? इन 25,000. लेकिन लोग वहाँ के उनसे इतना प्यार करते थे कि उसकी पहली ऑफ़र, पहली बोली कितनी लगी थी? 51,000. On August 18, 1945, Bose died in a plane crash. अगस्त 18, 1945 को बोस जी की डेथ हुई थी इन अ प्लेन क्रैश. His spirit still lives through his words, जय हिंद. उनके वर्ड्स थे जय हिंद, जिसमें उनकी स्पिरिट, उनकी जान, उनकी जो सहन शक्ति थी, जो चीज़ों को लड़ने की हिम्मत थी, वो आज भी जिंदा है उनके शब्दों में. उनके वर्ड्स क्या थे? जय हिंद. ही ऑल्सो कॉइन्ड द फेमस स्लोगन, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. उन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उन्होंने ही कॉइन की थी. कॉइन मीन्स उन्होंने ही इन्वेंट करी थी ये स्लोगन, और ये बहुत ही फेमस स्लोगन है हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से. सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत ही फेमस स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. So, understood everyone? Well, I hope that you all have understood the story. It was a very short story about Subhash Chandra Bose. Now we will proceed further in the next session. Okay, thank you everyone.